Namaste everyone and welcome to yet another session series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. Today I'll be taking you to CAT 21 slot 2, another set on charts and graphs. Let's look at whether this set could have been picked using our fate framework. So in terms of graph, very similar to the graph that was there in CAT 21 slot 1, which was horizontal bar graphs. So horizontal bar graphs given hai, to in terms of familiarity, I'll say that this is something that we are definitely familiar with. So familiarity mein it's a big check. Let's quickly read the clues and understand कि कुछ ambiguity है क्या clues में. So different bars in the diagram provide information about different orders, art, binders, papers, phones that were booked in the first 2 weeks of September of a store for one client. The color and pattern denotes the ship mode. मतलब first class is red, second class is black and green is standard class. The left end point of a bar indicates the booking day. Left end point मतलब जैसे सितंबर 1 को बुकिंग 8 में हुई है, क्लाइंट ने सितंबर 1 को बुकिंग करी है, बाइंडर्स के लिए बुकिंग हुई है, एक्सेसरीज के लिए हुई है, फर्निशिंग. सो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर इज नॉट टू मच डिफिकल्टी. आई विल से ambiguity भी हमारे फेवर में, as in there is no ambiguity. In terms of time consumption, let's quickly look at, maybe it might take some time for us to understand this graph, but then there are two theta based questions and two MCQ questions, so I think this is pretty manageable. Time consumption should not be too big an issue. In terms of extra info in questions, there is no extra info in questions, so therefore this is also in our favor. चार टिक्स मिल गए हैं. maybe time consumption is the only factor that you have to consider कि टिक लगाए या ना लगाए. it's your call. तब भी 3 टिक्स हैं, definitely doable है. This can be your second or third set that you could have tried in the exam, definitely for sure. So now let's spend some more time in trying to understand what do these categories mean. So I'll just zoom this part a bit. Just a second. I'll just zoom this part a bit for you to have a look at the graph in a better manner. So I hope now this would be better visible. So what they are saying कि this tells us the different shipping mode, first class, second class या standard class. और स्टार्टिंग लेफ्ट एंड जो है वो बुकिंग को डिनोट कर रहा है. जैसे सितंबर 1 यू विल फाइंड दैट फॉर आर्ट देयर वाज अ बुकिंग इन द कैटेगरी आर्ट ऑन सितंबर 1 एंड दिस वेंट ऑन टिल सितंबर 3. सो व्हाट डज दिस मीन, उसके बारे में उन्होंने समझाया है. द लेफ्ट एंड पॉइंट इंडिकेट्स द बुकिंग डे ऑफ द ऑर्डर, while the right end point, what is the right end point? Right end point क्या indicate कर रहा है? Right end point indicates the dispatch day of the order. The difference between the dispatch day and the booking day is called the processing time of the order. So understand this part now कि dispatch day और booking day इनका मतलब क्या है. So let's take this simple case जहां पर we say कि आर्ट का बुकिंग हुआ 1 सितंबर को फॉर वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्लास, ग्रीन में शेडेड है, और इसका जो एंड पॉइंट आ रहा है दैट इज व्हेन द डिस्पैच हैपेंड ऑन सितंबर 3. तो सितंबर 1 को बुकिंग कर लिया, सितंबर 3 को डिस्पैच कर दिया, मतलब 2 दिन का जो डिफरेंस है दैट इज देयर प्रोसेसिंग टाइम. सो आई कैन राइट हियर अ नंबर 2 and this number 2 will tell me the processing time. Similarly, just for understanding, I can say इसके लिए processing time 1 का है, इसके लिए processing time 2 का है, इसके लिए processing time 1 2 3 4 5 6 7 days का है, इसके लिए processing time, या तो आप डेट से जा सकते हो या मैनुअल ब्लॉक्स काउंट कर लो. डेट से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सितंबर 13 को बुकिंग हुई, ये कट ऑफ, दिस कट ऑफ सितंबर 13 को बुकिंग हुई, एंड देन फाइनली डिस्पैच कब हुआ, सितंबर 21 को. तो 8 days का आपका प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो प्रोसेसिंग टाइम इज क्लियर. फॉर द सेम कैटेगरी एन ऑर्डर इज कंसिडर्ड फॉर बुकिंग ओनली आफ्टर द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द सेम कैटेगरी इज डिस्पैच. सेम कैटेगरी का डिस्पैच होने के बाद ही अगला ऑर्डर आएगा. वो दिख भी रहा है क्लियरली, कहीं ऐसा ओवरलैप नहीं हो रहा है. नो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द सेम कैटेगरी एट आइडेंटिकल शिप मोड. तो कोई भी कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन से स्टैंडर्ड क्लास के मल्टीपल ऑर्डर्स हो गए. इसका सिंपल मतलब ये है कि ये एक ही ऑर्डर कंस्टिट्यूट कर रहा है. फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज की अगर हम बात करें, सो उसकी बुकिंग हुई 1 तारीख को और उसका डिस्पैच हुआ 19 तारीख को, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 18 days है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट कंजिक्यूटिव, देयर वेर no two consecutive orders
दैट हैड आइडेंटिकल शिप मोड, क्योंकि अगर ये आइडेंटिकल हो जाते तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाती, बट वो क्लियर कर दिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल देयर वर ओनली 2 ऑर्डर्स इन द फर्निशिंग कैटेगरी। फर्निशिंग कैटेगरी को देख के वो बोल रहे हैं कि 2 ही ऑर्डर है, ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, परफेक्ट। तो काउंट बहुत इजी है कि टोटल ऑर्डर्स कितने होंगे वो बड़ी कन्वीनियंटली हम काउंट कर सकते हैं कि आर्ट्स के लिए 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स आए। इफ आई आस्क यू एनवेलप्स के लिए कितने ऑर्डर्स आए, तो एक ही आया है। एक्सेसरीज के लिए एक ही आया है, चेयर्स के लिए 2 आए, टेबल्स के लिए 2, लेबल्स के लिए 2, फर्निशिंग के लिए 2, फास्टनर्स के लिए 3। प्रीटी इजी फॉर अस टू काउंट, and they have explained the part that we have already understood. It was booked on September 1 and dispatched on September 5. Book करा है September 1 को और dispatch करा है furnishing के लिए. So 4 days का उसका processing time है and so on. Now there are 4 questions. Let's look at the questions one by one. It should be pretty easy for us to solve hopefully. So question number 1. How many days between September 1? How many days between September 1 and September 14, both inclusive, September 1 से September 14 तक? So understand that this is the cutoff that we have. So I in fact create a line, vertical line, जिससे क्लियर हो जाए कि हमें September 14 तक के लिए कैलकुलेशन करना है, September 1 से September 14. Where they are saying had no booking from this client considering all the above categories. सारी कैटेगरीज मिला के कभी बुकिंग हुई नहीं. रिमेंबर बुकिंग कब होती है? लेफ्ट एंड बताता है बुकिंग का. जैसे सितंबर 1 को 1 2 3 4 बुकिंग्स हुई, हमें एक भी बुकिंग नहीं चाहिए. ऐसे कितने दिन है 1 से 14 तक? तो स्टार्ट देख लेते हैं. कहना है बाइंडर्स का ब्लैक वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, विच इज द सेकंड क्लास शिप मोड. तो मतलब यहां पे एक बुकिंग होगी सितंबर 2 की. सो वी जस्ट नीड टू सी कि लेफ्ट हैंड कहां पर आ रहा है किसी नई बुकिंग के लिए. ये ब्लैक का नया लेफ्ट हैंड आ गया, पेपर के लिए भी आ गया, तो सितंबर 2 के लिए भी बुकिंग है. सितंबर 3 के लिए देयर इज अ बुकिंग हियर अवेलेबल. सितंबर 4 कहीं स्टार्ट हो रहा है क्या? जस्ट क्विकली ऑब्जर्व सितंबर 4. सो वी कैन से यहां पर सितंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, सितंबर 4 से किसी की बुकिंग हो रही है. सितंबर 5 कहीं स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, यहां दिख रहा है सितंबर 5. सितंबर 6 क्विकली चेक, सितंबर 6 भी आ गया. सितंबर 7 तो यहीं नीचे दिख गया. September 8, you need a start at September 8 because they have asked कि had no booking. तो अगर नो बुकिंग है तो अगर कहीं भी स्टार्ट नहीं मिला तो नो बुकिंग को कंसिडर करेंगे. सितंबर 8 जस्ट मूव अहेड अहेड, यहाँ पे एंड हो गया, डिस्पैच हो गया, पर स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुआ. आई विल हाईलाइट दिस कि ये सितंबर 8 हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं. सो इफ आई इरेक्ट अ लाइन ऑन दिस पार्ट, देयर इज नो पर्टिकुलर बुकिंग डन. ये क्लियर हो रहा है कि इसके बाद कोई आगे बार स्टार्ट नहीं हो रहा है. एनी हॉरिजॉन्टल बार इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड आफ्टर दिस. यहां पर स्टार्ट हो रहा था, यहां पर स्टार्ट हो रहा था, 8 सितंबर को नहीं है. तो एक डेट तो मिल गई हमें सितंबर 8 वाली. ऐसी 14 तक कितनी डेट्स हैं वो काउंट करना है. नाउ वी कैन डू दिस वेरी क्विकली. कैन आई से सितंबर 9 क्विकली ग्लांस करो? नहीं आ रहा. 10 में नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, 12 में नहीं आ रहा, 13 में आ रहा है. 13 में देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देयर इज एन इंटरसेक्शन, यहाँ पे 13 से स्टार्ट हो गया तो 13 नहीं है, और 14 में भी नहीं आ रहा. सो आई कैन से 8 9 10 11 12, 13 छोड़ दो और बाकी 14 है. तो कितने डेज हो गए? 1 2 3 4 5 6. योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट यू विल मार्क विल बी इक्वल टू 6. थीटा बेस्ड क्वेश्चन एंड 8 9 10 11 12 14 आर द डेट्स. बिलीव मी, अगर आप ये सेट खुद से ट्राई करोगे ना, आई वांट यू टू stop looking at the solution if you haven't tried it by now. You will be able to solve it very very quickly. ये समझाने में ज्यादा टाइम लग जाता है compared to solving it on your own. I would say this is a really really easy set. कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चारों क्वेश्चंस करने में. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है. लेट्स लुक एट द अदर 3 क्वेश्चंस as well quickly. Second question, what was the average processing time of all orders in the categories which had only one type of ship mode? तो वन टाइप ऑफ शिप मोड मतलब सिर्फ रेड, सिर्फ ब्लैक या सिर्फ ग्रीन बार्स देख लेने हैं. तो यहां पर मल्टीपल 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 आ रहे हैं. एक्सेसरीज और एनवेलप्स हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, यही दो है जहां पर सिंगल है. तो इनका हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रोसेसिंग टाइम. 1 सितंबर से 19 सितंबर, कैन आई से फॉर दिस कैटेगरी वी हैव 18 डेज का प्रोसेसिंग टाइम और 3 से 7 4 डेज का प्रोसेसिंग टाइम. तो हमें 18 और 4 का एवरेज ले लेना है. एंड देयर ओनली 2 सच bookings done. So 18 or 4, 22 by 2, 11 is your answer. So I don't think anything can get easier than this as far as CAT exam is concerned. Let's look at the third question. The sequence of categories art, binder,
paper and phones in decreasing order of average processing time of their orders in the period. तो आर्ट, बाइंडर, पेपर, फोन्स, इनके एवरेज प्रोसेसिंग टाइम की बात करनी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देना है. अब एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो आर्ट्स के लिए टोटल निकालने के लिए इंडिविजुअल टोटल करने की जरूरत नहीं है. लुक एट द स्टार्ट डेट 1 से लेकर फाइनली 21 पे गए हैं. तो कैन आई से टोटल 20 अलग अलग. सो वी हैव, आई डायरेक्टली राइट द एवरेज हियर 20 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुकिंग्स 1 2 3 4 5. तो 20 by 5 इसका एवरेज आ गया 4. इट इज दैट इजी. अच्छा, बाय द वे आप वैसे फोन्स को देख के बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, बट बुकिंग या प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो इट इज फेयरली लार्ज. सितंबर 2 से सितंबर 17 तक जा रहा है. तो फोन्स के लिए इट इज 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 3, तो 5. बाइंडर्स के लिए भी क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं. सितंबर 1 से लेकर सितंबर 16 तक जा रहा है. सो दिस इज 15 ऑन अ बेस ऑफ 1 2 3 4. 15 by 4 which is how much? 3.75. और फाइनली पेपर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2 एंड इट इज गोइंग ऑन टिल सितंबर 12. सो 2 से 12 10 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिफरेंट बुकिंग्स? 3, तो 3.33. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है एवरेज के. तो सबसे पहले फोन आएगा, फोन के बाद आर्ट आएगा, फोन के बाद आर्ट किसी ऑप्शन में दिख रहा है, फोन के बाद बाइंडर, फोन के बाद आर्ट. करेक्ट आंसर विल बी चॉइस डी. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी आर डन विथ थर्ड क्वेश्चन. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. Approximately what percentage of orders had a processing time of 1 day? Had a processing time of 1 day. मैं लिख देता हूं किन किन का 1 day है. जो सबसे छोटा बार दिख रहा है ये एक मिल गया, यहां पर एक मिल गया. दिस इज अनदर 1 2. देन यू हैव 3, देन यू हैव 4 5, देन यू हैव एनी अदर ऑर्डर कहीं और दिख रहा है जो 1 वाला आपने छोड़ दिया हो. सो हियर इट इज 2. आई होप आई हैवंट मिस्ड एनी. यहां पर एक छोड़ दिया है 1. सो 1 2 3 4 5 6. आई गेस दैट्स ऑल. एक यहां भी दिख रहा है. सो एक बार क्विकली हाईलाइट कर देता हूं मैं जिससे क्लैरिटी आ जाए. 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 ऑर्डर्स जिनका प्रोसेसिंग टाइम 1 डे था. और टोटल ऑर्डर्स फटाफट काउंट कर लेते हैं. तो आर्ट्स के लिए तो हमने पहले ही काउंट कर लिया था. 1 2 3 4 5 है. 5 एंड देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. 35 टोटल ऑर्डर्स दिख रहे हैं. तो 7 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 कर देना है. सो इफेक्टिवली 1 by 5 इंटू 100 कितना होता है? 20%. चॉइस बी बिकम्स योर आंसर. अगेन दिस सेट इज एक्सट्रीमली इजी. आई एम प्रीटी श्योर कि आपने अगर ट्राई करा होगा तो ऑर्डर्स काउंट करके 7 न्यूमरेटर बन जाएगा. 7 by 35 into 100. One of the easier sets that CAT has thrown, CAT 21 slot 2 का. Remember CAT 21 slot 1 में भी similar type का horizontal bar था और relatively easier set था. You can always compare and say कि सर कौन सा ज़्यादा tough था, but I think both were very easy. So I think pretty similar level of difficulty across slots. That should take away your worries about slot picking as well कि सर slot 1 easy आता है क्या या slot 2 slot 3 tougher हो जाते हैं, normalization से फर्क. Don't worry too much. Just make sure that you have all the marks in the bank irrespective of the slot that you appear in. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.